باہمی تعلق کے متعلق یسوع کی تمثیلات۔ بچوں، پچھلے سبق میں ہم نے یسوع سے یہ سیکھا کہ دعا میں کیسا طرز عمل اپنانا چاہیے، اور آسمانی باپ کو ہمارا کس طرح کا لب و لہجہ پسند ہے۔ آئیں اب دیکھتے ہیں یسوع نے تمثیلوں کے ذریعہ روز و شب کی سرگرمیوں، دوستیوں اور ارد گرد کے لوگوں سے مہذب تعلقات رکھنے کے کیسے انداز سکھائے۔ دل میں بسے تعصب سے جان چھڑا لیں۔ یسوع چاہتا ہے ہم دوسروں سے اچھے تعلقات کی خاطر اپنے دلوں سے کدورت نکال پھینکیں۔ اگر ہم پہلے ہی دوسروں سے مخالفت کا ذہن بنائے رکھیں گے تب تو کسی کی اچھائی یا برائی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم تو متفق ہونے سے رہے۔ یوں کسی کی مدد کا تو موقع ہی نہ ملے گا۔ یسوع نے کہا تھا، لوکا 6:41 سے 42 آیت۔ تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شہتیر پر غور نہیں کرتا؟ اور جب تو اپنی آنکھ کے شہتیر کو نہیں دیکھتا تو اپنے بھائی سے کیوں کہہ سکتا ہے کہ بھائی لا اس تنکے کو جو تیری آنکھ میں ہے نکال دوں؟ اے ریاکار، پہلے اپنی آنکھ میں سے تو شہتیر نکال، پھر اس تنکے کو جو تیرے بھائی کی آنکھ میں ہے اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا۔ یسوع کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں دوسروں کی آنکھ سے تنکا نہیں نکالنا چاہیے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ جب ہم کسی سے دوستی رکھیں گے ہی نہیں تو ہمیں پیش آنے والے سب حالات ہمارے لیے مسائل ہی پیدا کیے چلے جائیں گے۔ یوں ہماری اپنی زندگی بد سے بدتر ہوتی چلی جائے گی، جبکہ ہم دوسروں کو کوستے اور الزام دیتے رہ جائیں گے۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ دوسرے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے، ایسے میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم خود ہی نک چڑھے اور چڑچڑے مزاج کا مظاہرہ کر رہے ہوں۔ جب ہم دوسروں کو غیر ذمہ داری کا الزام دیتے ہیں تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم دوسروں پر نکتہ چینی کیے جا رہے ہوں مگر ان کی مدد کرنے پر ہرگز آمادہ نہیں ہیں۔ یسوع چاہتا ہے ہم حالات پر خوب توجہ دیں اور ان کے معنی سمجھیں۔ پہلے اپنی بری خصلتوں سے پیچھا چھڑانا ہوگا اور بعد میں دوسروں کو سنوارنے کی باری آئے گی۔ تب ہم یوں نہیں سوچیں گے کہ سارا بگاڑ اور انتشار دوسروں کا ہی پیدا کردہ ہے۔ تب ہم دوسروں کو نصیحتیں کریں گے تو ہمارے قول و فعل میں توازن دکھائی دے گا اور دوسروں پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ یسوع نے فرمایا، ہمیں اپنے دلوں سے دوسروں کے متعلق کدورت نکال پھینکنی ہوگی اور اپنے وجود میں بسے تعصب آمیز رویوں سے بھی چھٹکارا پانا ہوگا جو ہم نے دوسروں کی مالی حیثیت اور ان کے حسب و نسب کے متعلق اپنے دلوں میں بٹھا رکھے ہیں۔ یسوع نے فرمایا، ایک نیک دل سامری کی تمثیل۔ لوکا 10:25 آیت اور 30 سے 32 آیت۔ اور دیکھو ایک عالم شرع اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کرنے لگا کہ استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ یسوع نے جواب میں کہا کہ ایک آدمی یروشلم سے یریحو کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں میں گر گیا۔ انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے اور مارا بھی اور ادموا چھوڑ کر چلے گئے۔ اتفاقاً ایک کاہن اسی راہ سے جا رہا تھا اور اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا۔ اسی طرح ایک لاوی اس جگہ آیا، وہ بھی اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا۔ لوکا 10
33 से 37 आयत। लेकिन एक सामरी सफर करते करते वहां आ निकला और उसे देख कर उसने तरस खाया और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैं लगाकर बांधा और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। दूसरे दिन 2 दीनार निकाल कर बटियारे को दिए और कहा, इसकी खबरगिरी करना और जो कुछ इससे ज्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा कर दूंगा। इन तीनों में से उस शख्स का जो डाकुओं में गिर गया था तेरी दानिस्त में कौन पड़ोसी ठहरा? उसने कहा, वो जिसने उस पर रहम किया। यसू ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। बच्चों, यसू की ये तमसील हमें सिखाती है दिल में अदावत ठान के मत बैठे रहें, बल्कि हर वक्त दूसरों की मदद पर तैयार रहें। अक्सर यूं होता है कि हम अपने दिल में तय किए रहते हैं कौन हमारी मोहब्बत का अहल है और कौन नफरत के काबिल। कौन अच्छा दोस्त है, किसने कभी हम पर ज्यादती की थी, या ये शख्स तो मेरा रिश्तेदार है और वो एक अजनबी। ऐसे में वो शख्स जिसे हमने नफरत के काबिल समझ रखा हो हमारी मदद का हकदार हो तो हम उसकी खातिर खुद को जरा सी भी जहमत नहीं देते। यसू चाहता है हम अपने दिलों से कुदूरत निकाल फेंकें और हम वक्त दूसरों की मदद पर कमर बस्ता रहें। यूं हम अच्छे पड़ोसी कहलाएंगे। जरूरी नहीं पहले आप रूहानी मुबल्लग बन जाएं या बहुत आला हैसियत पर फायज हो जाएं, तब ही अच्छे पड़ोसी बने। यसू ने इसीलिए अपनी तमसील में एक सामरी का जिक्र किया जिन्हें वो लोग हकीर समझते थे। अच्छे पड़ोसी की इस तमसील से यसू सिखाना चाहता है हमें इर्द गिर्द के लोगों से किस तरह हुस्ने सलूक से पेश आना चाहिए। अब यीशु एक और तमसील बयान करते हुए हमें हर काम को खुश असलूबी से सर अंजाम देने की तरगीब देता है। पाकिस्तान के मजदूरों की मिसल, मत्ती 20 बाब 1 से 17 आयत। क्योंकि आसमान की बादशाही उस घर के मालिक की मानिंद है जो सवेरे निकला ताकि अपने ताकिस्तान में मजदूर लगाए, और उसने मजदूरों से 1 दीनार रोज ठहरा कर उन्हें अपने ताकिस्तान में भेज दिया। फिर पहर दिन चढ़े के करीब निकलकर उसने औरों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी पाकिस्तान में चले जाओ, जो वाजिब है तुमको दूंगा। बस वो चले गए। फिर उसने दोपहर और तीसरे पहर के करीब निकलकर वैसा ही किया, और कोई 1 घंटा दिन रहे फिर निकलकर औरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ तमाम दिन बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमको मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी पाकिस्तान में चले जाओ। जब शाम हुई तो पाकिस्तान के मालिक ने अपने कारिंदा से कहा कि मजदूरों को बुला और पिछलों से लेकर पहलों तक उनकी मजदूरी दे दे। जब वो आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे तो उनको 1 दीनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो उन्होंने ये समझा कि हमको ज्यादा मिलेगा, और उनको भी 1 दीनार मिला। जब मिला तो घर के मालिक से ये कहकर शिकायत करने लगे कि इन पिछलों ने 1 घंटा काम किया है और तूने इनको हमारे बराबर कर दिया।
जिन्हों ने दिन भर का बोझ उठाया और सख्त धूप सही। उसने जवाब देकर उनमें से एक से कहा, मियाँ, मैं तेरे साथ बेइंसाफी नहीं करता। क्या तेरा मुझसे 1 दीनार नहीं ठहरा था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी ये मर्जी है कि जितना तुझे देता हूँ इस पिछले को भी उतना ही दूं। क्या मुझे रवा नहीं कि अपने माल से जो चाहूं सो करूं? या तू इसलिए कि मैं नेक हूँ बुरी नजर से देखता है? इसी तरह आखिर अव्वल हो जाएंगे और अव्वल आखिर। मत्ती 22 पाक 14 आयत। क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं मगर बरगजीदा थोड़े। बच्चों, अगर आप उनकी जगह होते, सारा दिन खूब मेहनत की होती और काम भी दूसरों से ज्यादा किया होता, मगर बदले में वही मिलता जो दूसरों को मिला, तो क्या आपको भी ये बेइंसाफी लगती? मगर यीशु ने कहा, जब तुमने अपनी उजरत पा ली तो तुम्हें दूसरों से क्या लेना? दूसरों ने जो पाया वो उनका था, खुदा बेइंसाफ नहीं। हम पहले तो उजरत पाकर खुश हो ही लेते हैं, मगर जैसे ही पता चलता है दूसरों ने तो कुछ किया भी नहीं और मजे से नेमतें पा ली, हमारा चैन लुट जाता और मायूसी आ घेरती है। बच्चों, हमें बहुत ही मोहतात रहना होगा। किसी को रियायत मिल जाने पर, किसी की तारीफ होने पर, किसी के फायदा या इनाम पाने पर हमें बरहमी और हसद से दूर रहना होगा। बच्चों, यीशु नहीं चाहता कि हम हसद की जलन का शिकार हुआ करें। यीशु हमें साबर और शाकर देखना चाहता है कि जो भी मिल जाए हम खुशदिली से खुदा का शुक्र अदा करें और अपने हालात में मुतमईन रहें। क्योंकि खुदा बेइंसाफी नहीं करता। इस तमसील का दूसरा मतलब इसराइल को ये समझाना है कि वो तो ऐसी कौम है जिसने खुदा के साथ पहले पहल अहद बांधा था। वो सबसे पहली कौम थे जो आसमानी बाप की नजात के बाग में दाखिल हुए। मगर जब यीशु ने नजात की तकमील कर दी, तब आसमानी बाप ने हर उस फर्द के लिए अपनी नजात की बरकतें खोल कर पेश कर दी जो अपने दिल की खुशी से इस नजात के मजे लेना चाहे। उसे ऐन वही बरकतें मिलेंगी जो इसराइल ने पाई। इस तमसील का मतलब उन्हें आसमानी बाप का प्यार भरा मंसूबा समझाना है, क्योंकि वो दुनिया के हर फर्द से मोहब्बत रखता है। आए देखते हैं यीशु ने हमें क्या सिखाया। बख्शिश की तमसील, मत्ती 18 बाब 23 से 35 आयत। बस आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिंद है जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा और जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने एक कर्जदार हाजिर किया गया जिस पर उसके 10,000 तोड़े आते थे। मगर चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ न था, इसलिए उसके मालिक ने हुक्म दिया कि ये और इसकी बीवी बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। पस नौकर ने गिरकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद, मुझे मोहलत दे, मैं तेरा सारा कर्ज अदा करूंगा। उस नौकर के मालिक ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज बख्श दिया। जब वो नौकर बाहर निकला तो उसके हम खिदमतों में से एक उसको मिला जिस पर उसके 100 दीनार आते थे। उसने उसको पकड़कर उसका गला घूंटा और कहा, जो मेरा आता है अदा कर दे।
पस उसके हम खिदमत ने उसके सामने गिर कर उसकी मिन्नत की और कहा, मुझे मोहलत दे, मैं तुझे अदा कर दूंगा। उसने ना माना, बल्कि जाकर उसे कैद खाना में डाल दिया कि जब तक कर्ज अदा ना कर दे कैद रहे। पस उसके हम खिदमत ये हाल देख कर बहुत गमगीन हुए और आकर अपने मालिक को सब कुछ जो हुआ था सुना दिया। इस पर उसके मालिक ने उसको पास बुलाकर उससे कहा, ऐ शरीर नौकर, मैंने वो सारा कर्ज तुझे इसलिए बख्श दिया कि तूने मेरी मिन्नत की थी। क्या तुझे लाजम ना था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता? और उसके मालिक ने खफा होकर उसको जल्लादों के हवाला किया कि जब तक तमाम कर्ज अदा ना कर दे कैद रहे। मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से माफ ना करे। बच्चों, यसू की सुनाई तमसील में मालिक ने नौकर का कितना कर्ज माफ किया? सोने के 10,000 सिक्के। इस नौकर का गरीब साथी पहले वाले नौकर का कितना मकरूज था? वो चांदी के 100 सिक्कों का मकरूज था। बच्चों, इस मिसाल में यसू हमें ये समझा रहा है कि लोगों के हमारे सामने मकरूज होने से कहीं बढ़कर हम खुदा के मकरूज हैं। अगरचे बाज औकात हम बदसलूकी या ज्यादती का निशाना बन भी जाते हैं, मगर खुदा यही चाहता है कि हम दूसरों के साथ नरमी और दरगुजर किया करें, क्योंकि हम जो कुछ दूसरों को देते हैं खुदा उससे कहीं बढ़कर हमें देता है। अगर हम दूसरों के कसूर, उनकी खताएं मुआफ ना करें तो खुदा भी हमारे गुनाहों को सामने ला खड़ा करेगा, क्योंकि खुदा के हजूर हमारे गुनाह लोगों की खताओं से कहीं ज्यादा और घिनौने हैं। बच्चों, एक अक्लमंद नौकर को क्या करना चाहिए? क्या खुदा से 10,000 सोने के सिक्कों का कर्ज मुआफ कराने की खातिर अपने साथी का 100 चांदी के सिक्कों का कर्ज मुआफ कर देना चाहिए? या दूसरों की जरा जरा सी बात का हिसाब रखकर खुदा को उकसाना चाहिए? वो हमारे उन कसूरों पर सजा का हुक्म करे जो हमने उसके हुजूर किए हैं। बच्चों, यसू ने हमें किस वजह से दूसरों को माफ कर देने की तलकीन की? क्योंकि किसी को माफ कर देने से खुशी और मोहब्बत पैदा होती है। किसी को मुआफ कर देने की आदत के जरिया खुदा की मोहब्बत दूसरों के दिलों पर भी असर करती है। जिस फर्द को माफ कर दिया जाए वो आपके इस अमल की वजह से खुदा की मोहब्बत से वाकिफ हो जाएगा। इस तरह लोग आसमानी बाप की मोहब्बत से लुत्फ अंदोज होना शुरू हो जाएंगे। यसू उन फरीसियों पर जो उस पर तनकीद करते थे कि वो क्यों गुनहगारों के साथ खाता और उनसे दोस्ती रखता था, ये वाजे करना चाहता था कि दूसरों को माफ करने, उनके साथ ताल्लुक रखने में ही यसू का प्यार झलकता है। यसू ने इस तमसील के जरिया आसमानी बाप के प्यार का अंदाज समझाया। खुदा के चुने हुए लोगों को ढूंढने की तमसील। खोई हुई भेड़ की तलाश। लोका 15 बाप 1 से 7 आयत। सब महसूल लेने वाले और गुनहगार उसके पास आते थे ताकि उसकी बातें सुने, और फरीसी और फकीर बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि ये आदमी गुनाहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है। उसने उनसे ये तमसील कही कि
تم میں کون ایسا آدمی ہے جس کے پاس 100 بیڑے ہوں اور ان میں سے ایک کھو جائے تو 99 کو بیابان میں چھوڑ کر اس کھوئی ہوئی کو جب تک مل نہ جائے ڈھونڈتا نہ رہے؟ پھر جب مل جاتی ہے تو وہ خوش ہو کر اسے کندھے پر اٹھا لیتا ہے اور گھر پہنچ کر دوستوں اور پڑوسیوں کو بلاتا اور کہتا ہے میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میری کھوئی ہوئی بھیڑ مل گئی۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے ایک توبہ کرنے والے گنہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ بچوں، یسوع ایسے فریسیوں میں گھرا ہوا تھا جو بزوں میں خود نہایت ہی راستگار تھے۔ وہ اٹل لہجہ میں شریعت کی پاسداری پر قائم ہونے کے بلند بانگ دعوے کرتے اور اپنے آپ کو کسی توبہ یا پچھتاوا سے مبرہ گردانتے۔ مگر یسوع نے فرمایا وہ ان منہ بولے راستکاروں سے گریزاں ایسے لوگوں کی تلاش میں ہے جو زندگی کی حقیقتوں اور یسوع کی نجات کی طلب رکھتے ہیں۔ بچوں، بنی اسرائیل نے کوہ سینا پر خدا سے عہد باندھا اور خدا کی منتخب قوم ٹھہرے، مگر تاریخ کے ہر دور میں وہ خدا کے حضور سرکشی پر اڑے رہے۔ یسوع نے یہ تمثیل اس لیے سنائی تاکہ توریت پر کاربند بزوں میں خود راستگار فریسی اپنی غلط راہوں سے باز آ جائیں اور خدا کے حضور توبہ کر لیں۔ اگلی تمثیل میں یہ سمجھایا گیا ہے خدا کتنی بے چینی سے ان سرکش لوگوں کی واپسی کا منتظر رہتا ہے جنہوں نے اس سے منہ موڑ رکھا ہے کہ وہ آغاز کی طرح اپنے اس عہد پر قائم ہو جائیں جس نے ان کا خدا سے تعلق جوڑا تھا۔ اسی تعلق کی استواری سے خدا کا دل تسلی پائے گا۔ تمثیل گم شدہ سکے کی تلاش، لوکا 15 باب 8 سے 10 آیت۔ یا کون ایسی عورت ہے جس کے پاس 10 درہم ہوں اور ایک کھو جائے تو وہ چراغ جلا کر گھر میں جھاڑو نہ دے اور جب تک مل نہ جائے کوشش سے ڈھونڈتی نہ رہے، اور جب مل جائے تو اپنی دوستوں اور پڑوسیوں کو بلا کر نہ کہے کہ میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میرا کھویا ہوا درہم مل گیا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح ایک توبہ کرنے والے گنہگار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے۔ بچوں، شروع میں اس عورت کے پاس 10 سکے تھے۔ 10 کا ہندسہ تکمیل کو ظاہر کرتا ہے اور خدا کے 10 احکام کی علامت سمجھا جا سکتا ہے۔ جب آسمانی باپ نے 10 احکام کے ذریعہ کوہ سینا پر اسرائیل کے ساتھ شادی کا عہد باندھ لیا تو اس کا دل نہایت ہی مسرور اور مطمئن ہوا۔ مگر اب ایک عدد کے گم ہو جانے سے رشتہ ادھورا سا ہو کر رہ گیا۔ جب اسرائیلی 10 احکام سے منہ موڑ کر خدا کے حضور گناہ کی راہ پر چل نکلے تو پیار کا یہ رشتہ برباد ہو گیا۔ مگر یسوع نے خوب زور دے کر یہ بات سمجھائی کہ آسمانی باپ رشتہ کی اس بربادی پر چشم پوشی نہیں کرے گا۔ اس نے یسوع کو اسی لیے بھیجا ہے کہ خدا کے ساتھ باندھے عہد کو بھلا دینے والوں کو واپس ڈھونڈ لائے۔ خدا کا دل صرف اسی وقت تسلی پائے گا جب ان کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈ لایا جائے گا اور ان کے مقام پر بحال کر دیا جائے گا۔ بچوں، اگرچہ یہ دونوں تمثیلیں ان فریسیوں کے لیے ہیں جو شریعت پر کاربند تھے اور ان اسرائیلیوں کے لیے
जो खुदा के अहकाम से मुंह मोड़ चुके थे। मगर इसके साथ साथ ये ऐसे तमाम नौजवानों और बच्चों के लिए भी हैं जो यीशु के पैरोकार हैं। यसू ये नहीं चाहता कि हम अपने आसमानी बाप को एक सख्त गिर बाप समझें, जो सिर्फ यही चाहता है कि लोग अहकाम की बजा आवरी करते जाएं। बल्कि ये समझाना मकसद है कि ईमानदार ये ना समझ लें कि अब जिंदगी अपने ही तरीकों से बर्बाद कर सकते हैं, खुद गर्जी की राहों पर लापरवाहियों से जी सकते हैं, क्योंकि वो नजात तो पा ही चुके हैं। यसू ने खुदा बाप के इंतजार की बेताबी भी बताई कि वो किस तरह इंसान की तौबा का मुंतजर रहता है। फजूल खर्च बेटे की मिसल, लोका 15 बाब 11 से 16 आयत। फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ए बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता उन्हें बांट दिया। और बहुत दिन न गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदा के यहाँ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सूअर चराने भेजा और उसे आरजू थी कि जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। लोका 15 बाब 17 आयत और 20 से 24 आयत। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को अफरात से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़बा करो, ताकि हम खाकर खुशी मनाएं। क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खो गया था, अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगे। बच्चों, इस तमसील में छोटे बेटे ने माल समेटा और बाप के घर से चल निकला। जब सब कुछ लुटा बैठा, दोस्त अहबाब बेयारो मददगार छोड़कर चल दिए तो अपने किए पर पशेमान हुआ बाप के पास वापस पहुंचा, ताकि अपने गुनाहों पर शर्मसार होकर माफी मांग सके। बच्चों, बाप घर में सुकून से नहीं बैठा था। वो ना तो टीवी में दिल लगा पाया, ना नींद के मजे लिए और ना ही सुकून से कुछ खा सका था। बाहर खड़ा छोटे ना तजर्बाकार बेटे की राहें तकता रहा कि शायद वो घर वापस लौट आए। तब उस दिन बाप ने एक तबाहाल भिखारी के रूप में किसी को दूर से आते देखा। वो पहचान गया, ये उसका वही बेटा है जो उदास करके चला गया था। तब वो बेताबी से फौरन उसकी तरफ दौड़ता हुआ गया, उसे गले लगाया और बेहतरीन लिबास पहनने को दिया। हाथ में अंगूठी और पाँव में शानदार जूते पहनाए, ताकि वो सबकी निगाहों में शानदार और मोहतरम हो जाए। बच्चों,
फरीसी समझ नहीं पाए कि यसू क्यों महसूल लेने वालों और गुनहगारों के साथ था। यसू ने छोटे बेटे की तौबा वाली इस मिसल से उन्हें ये हकीकत समझाई कि आसमानी बाप भी छोटे बेटों के घर लौट आने का मुंतजर है। जब मूस और इसराइली तौबा करके आसमानी बाप से किए अहद पर कायम हो जाते हैं, तब आसमानी बाप उनकी खोकर मिले खजाना जैसी कदर करता है। इस सब कुछ के बावजूद वहाँ एक दूसरा फर्द भी था जो नाराज और बरहम भी था। आखिर क्यों? लूका 15 बाब 25 से 27 आयत। लेकिन उसका बड़ा बेटा खेत में था। जब वो आकर घर के नजदीक पहुंचा तो गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनी और एक नौकर को बुलाकर दरियाफ्त करने लगा कि ये क्या हो रहा है। उसने उससे कहा, तेरा भाई आ गया है और तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा ज़बा कराया है, क्योंकि उसे भला चंगा पाया। लूका 15 बाब 28 आयत। वो गुस्से हुआ और अंदर जाना ना चाहा, मगर उसका बाप बाहर जाकर उसे मनाने लगा। लूका 15 बाब 29 से 30 आयत। उसने अपने बाप से जवाब में कहा, देख, इतने बरसों से मैं तेरी खिदमत करता हूँ और कभी तेरी हुक्म अदूली नहीं की, मगर मुझे तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाता। लेकिन जब तेरा ये बेटा आया जिसने तेरा माल मता कस्बियों में उड़ा दिया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा ज़बा कराया। लूका 15 बाब 31 से 32 आयत। उसने उससे कहा, बेटा, तू तो हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है, लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना मुनासिब था, क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था अब जिंदा हुआ, खोया हुआ था अब मिला है। बच्चों, वो कौन था जो खफा हो गया और घर में आकर सबके साथ मिलकर खुशी मनाने से इनकार करने लगा? ये तो मेहनती और फरमाबरदार बेटा था। वो समझता था कि उसके छोटे भाई के तौर तरीकों ने उसे घर वापस लौटने के काबिल ही नहीं छोड़ा था। अब बेटा होने का शानदार मुकाम सिर्फ उसी के हिस्सा में रह गया है। उसके दिल में ये बात थी कि वो बहुत मेहनत करता रहा है, मगर उसके बाप ने उसे उसका दुरुस्त मकाम और इज्जत नहीं बख्शी। बच्चों, क्या बड़े बेटे का अंदाज उन फरीसियों जैसा नहीं जो मुजरिमों और महसूल लेने वालों की हकारत करते थे? वो शरीयत की पासदारी में सख्त मेहनत करते थे। यहाँ तक के दूसरे बहुत से कवानीन और रसूम व रवाज अखज कर चुके थे कि खुदा के ज्यादा से ज्यादा ताबेदार दिखाई दें। चुनाचे जब उन्होंने गुनाहों में लुथड़े गुनहगारों को जबरदस्त ताकतों कुदरत के मालिक यसू के गिर्द मंडलाते देखा तो बहुत बरहम हुए। बच्चों, आप किस किस्म के अफराद हैं? क्या आप अपने आप को खुदा का बेटा समझते हैं? चुनाचे जो जी में आए करते फिरे। क्योंकि यीशु आपसे प्यार करता है। या आप वो हैं कि अपनी जिंदगी में बड़ी मेहनत से बाइबल की तालीम पर अमल पैरा हैं? और क्या आप अपने आप के साथ साथ दूसरों से भी खुश रहते हैं? बस अगर आप एक नाफरमान औलाद हैं तो अपनी गुनहगार रविशों से बाज आ जाएं। तौबा कर लें और आसमानी बाप के खुले बाजुओं में सिमट आएं।
अगर आप एक ऐसे बेटे हैं जो अपनी पढ़ाई पर खूब तवज्जो देते हैं, आसमानी बाप ये उम्मीद करता है कि आप अपनी मेहनत के दौरान उसकी मोहब्बत से खूब लुत्फ उठाएंगे। क्योंकि जब आप मसरूर होते हैं तो आसमानी बाप भी मसरूर होता है। आज हमने बहुत सी तमसीलें सुनी। हर एक में यही समझाया गया कि हमें आसमानी बाप जैसा बड़ा दिल रखना होगा। दूसरों से मुआजना करने की आदत तर्क करनी होगी। आसमानी बाप की मोहब्बत को समझना होगा, जो किसी भी कीमती जान को खोना नहीं चाहता। वो इसराइल से किए अहद को कभी नहीं भूलेगा। जब ये सब काम इसी अंदाज से हो जाएंगे, तब आसमानी बाप की खुशी सारे आसमान पर खूब धूम मचाएगी। आए इकट्ठे दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, आज मैंने बहुत सी तमसीलें सुनी है। मैं जान गया हूँ तुझे ये बात पसंद नहीं कि हम चीजों की अच्छाई अपने ही मयार से परखते रहें। तुझे पसंद नहीं कि हम इन बातों का फैसला करें कि कौन किस बात का अहल है और कौन नहीं। प्यारे आसमानी बाप, जो तुझसे मुंह मोड़ के चल दिए, तू उन्हें अपनी महफिल में वापस लाना चाहता है, और जो तेरे करीब है उन्हें खुश देखना चाहता है। तू चाहता है हम दूसरों को माफ करके उनको गले लगाएं। प्यारे बाप, मेहरबानी से मेरी मदद फरमा कि मैं तेरी रजा और तेरी मोहब्बत समझूं। मुझे फराख दिली, मुस्तकिल मजाजी, दूसरों की हौसला अफजाई और दरगुजर कर देने की नेमत अता फरमा दे। मैं मानता हूँ मैं समझ नहीं पाया लोग क्यों तुझे जान लेने पर भी जहन्नुम की राहों पे चले जा रहे हैं। आखिर मैं करूँ तो करूँ भी क्या? वो दिल से कुछ मानने पे तैयार ही नहीं। वो अपने कदमों से चलकर तेरे हुजूर आना चाहते ही नहीं। इसमें भला मैं क्या करूं? प्यारे बापू, मेहरबानी से मुझे सिखा और समझा दे कि जब मैं तेरे काम में हाथ बटाऊंगा, तेरे हुक्म मानूंगा, तेरे प्यार के नमक को अपने वजूद से जाहिर करूंगा, तेरी मोहब्बत की रोशनी दूसरों तक पहुंचाऊंगा, अपनी जिंदगी में दूसरों के लिए तेरे प्यार का फल पैदा करूंगा, ताकि तेरा जलाल सारी दुनिया में चमके। तो तू आसमान पर मेरे लिए नहायत मसरूर होगा। प्यारे बापू, मुझे अपना ऐसा बेटा बना ले जिसके काम तुझे आसमान पर फरहत पहुंचाए और मसरूर कर दे। यसू के नाम में मेरी ये दुआ है, आमीन। बाइबल की याद करने की आयत। इसी तरह तुम्हारा आसमानी बाप ये नहीं चाहता कि इन छोटों में से